Hello students, good evening to all. So as you can see on my screen, today I am going to discuss the MBA program from IIT Bombay, Salesh J. Mehta School of Management. So in this video, I will discuss the shortlisting for PI, what are the parameters, what are the weightage of the CAT score and different backgrounds like आपका academic profile and what are the phase 2 selection parameters and the important dates, and in the last I will announce something for you. So please आप लोग पूरा वीडियो देखना है आपको. And before starting my video, I have an important announcement for you from the Unacademy side. So बच्चे, this is a program for GD, PI and VAT preparation. So those students who secured the good percentile in CAT and expecting the call from the colleges can join this program, right? तो आपका GDPI and VAT का preparation हो जाएगा. In the description box, I will upload the link for this program. So आप लोग इसके features वगैरह पूरा अच्छे से देख सकते हो. And even though you can avail the 100% up to 100% scholarship, right? And if you want to purchase this program and by using my referral code Rakhi10, you will get the extra 10% off. Okay, so this is a good opportunity. Please check the description box. Okay, so let's start. First, I will start from the important dates. As you know, CAT is already released the result. Online application for the IIT Bombay is already started. For each and every IITs, you have to fill the separate form. ऐसा नहीं है कि एक IIT का फॉर्म भर दिया तो सारे IIT से आपको कॉल आ जाएगा. Last date is 31st Jan. So if you are planning to fill these forms, don't miss the date, right? 31st Jan 2022. Shortlisting criteria आपका tentatively 17th Jan, जो उन्होंने अपने official website पर दिया है. Personal interview will be conducted from 2nd to 6th March and final list of the selected candidate will be released around 1st May 2022. ठीक है, सो स्टार्ट कर दीजिए आप लोग अपना प्रिपरेशन इफ यू आर एलिजिबल फॉर IIT बॉम्बे. सो प्रोग्राम्स ऑफर्ड इन IIT बॉम्बे: finance, accounting, operation and HR. Most important parameter is what are the eligibility criteria, because ma'am we heard that कि सिर्फ IITs में engineers आते हैं. No, this is a myth. But yes, for the IIT Bombay they required the 4-year bachelor degree program. So बहुत सारे colleges में, बहुत सारी universities में जो humanities के programs होते हैं वो भी 4-year honors वाले programs होते हैं. तो 4-year के degree program अगर आपके पास है then you are eligible to apply in IIT बॉम्बे. और अगर आपके पास 4-year बैचलर डिग्री नहीं है, मास्टर डिग्री है इन एनी डिसिप्लिन बट विथ 60% मार्क्स, देन डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर दिस कॉलेज. एंड अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है, CA, CS, CFA, तो इसके लिए भी आप लोग क्राइटेरिया चेक करिए. 60% मार्क्स एंड 50% फॉर द रिजर्व कैटेगरी, देन यू आर एलिजिबल, राइट. बट 4-year डिग्री होना चाहिए आपका. लाइक अगर इफ यू आर डूइंग द BCom, BBA 3-year डिग्री प्रोग्राम, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस कॉलेज. ओके, शॉर्ट लिस्टिंग फॉर, अगर आप लोग शॉर्ट लिस्टिंग देखो फॉर द PI, लाइक आपको कॉल आएगा या नहीं आएगा, तो मिनिमम परसेंटेज जो उन्होंने दिया है, मिनिमम परसेंटाइल फॉर द जनरल एंड EWS कैटेगरीज 90 एंड इंडिविजुअली इट शुड बी 80 80 80, राइट. लेकिन अगर आपको मैं सिलेक्शन के लिए बात करूं ऑन द प्रीवियस ईयर बेस, तो आपका 98 से 99 प्लस परसेंटाइल, आपका 98 प्लस परसेंटाइल आपका होना चाहिए, तभी आपको कॉल, मतलब आपका जो कॉल है वो कन्वर्ट होने के हाई चांसेस है. बिकॉज इट्स अ वेरी फॉर द जनरल कैटेगरी इट्स अ वेरी वेरी रिनाउंड इंस्टीट्यूट, तो इसका कट ऑफ काफी ऊपर जाता है. ठीक है, लेकिन जैसे अगर आप रिजर्व कैटेगरी से OBC SC ST PWD, तो थोड़ा बहुत वहां पे प्रिविलेज रहता है, बट इतना तो मिनिमम होना चाहिए. इंडिविजुअली 80 80 80, ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया है. ओके, फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग, राइट, PI के लिए शॉर्ट लिस्टिंग. तो फेज 1 में क्यों मैंने ऐसा बोला कि 98 99 प्लस परसेंटाइल के आसपास कन्वर्जन रेशियो रहता है, बिकॉज आपका जो फेज 1 में जब हम शॉर्ट लिस्टिंग फॉर PI करते हैं, मतलब कॉलेज वाले, तो परफॉर्मेंस इन CAT 2021, मतलब जो भी आप CAT दे रहे हो, लाइक तो आपका 70% जो वेटेज होगा वो CAT के स्कोर को दिया जाएगा एंड 30% वेटेज आपका एकेडमिक प्रोफाइल. एकेडमिक प्रोफाइल में आपका 12th हो गया, ग्रेजुएशन, जेंडर डाइवर्सिटी. 10th को यहाँ पे कोई वेटेज नहीं है. 12th, ग्रेजुएशन, जेंडर डाइवर्सिटी,
पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है तो, एंड वर्क एक्सपीरियंस। तो जेंडर डाइवर्सिटी में बच्चे इफ यू आर द फीमेल कैंडिडेट तो 10% आपको उसका वेटेज मिलेगा। तो अगर आपका थोड़ा परसेंटेज लोअर साइड है लाइक 97 98 तो भी आपको ये फॉर्म फिल करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रिविलेज रहेगा। एंड पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 3% एंड 5% फॉर द प्रोफेशनल्स, राइट। तो दीज आर द परसेंटेज वेटेज है फॉर शॉर्ट लिस्टिंग, ठीक है, कि पीआई के लिए जब आपकी कॉल्स आएगी। फेज 1 हो गया। अब जब हम सेकेंड बात करते हैं फेज 2 फाइनल सिलेक्शन, लाइक जो आपका मेरिट लिस्ट जो आपका बनता है उसमें ओवरऑल आपकी कैट की परसेंटाइल को 42.5% वेटेज दिया जाता है, पर्सनल इंटरव्यू को 42.5% एंड कैंडिडेट प्रोफाइल लाइक आपका 12th था, ग्रेजुएशन, वर्क एक्सपीरियंस और जेंडर डाइवर्सिटी, इसको आपको 15% का वेटेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल जब आपका फाइनल सिलेक्शंस के लिए ये वेटेज है, ठीक है। तो यहाँ पे कैट का भी काफी अच्छा और पीआई में भी आपको काफी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, ओके। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो फॉर्मूला पूरा उन्होंने दिया हुआ है कैलकुलेट करने का, टू कैलकुलेट द कंपोजिट स्कोर, वो मैं वहां पे अपलोड कर दूंगी, ओके। सो कुछ क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में कि मैम चलो ठीक है, अगर हम लोग आईआईटी बॉम्बे के लिए एलिजिबल हैं और मैंने फिल कर दिया एंड आई हैव द हायर चांस टू कन्वर्ट दिस स्कूल, तो देयर इज एनी स्कॉलरशिप स्कीम? यस डेफिनेटली, मोस्टली कॉलेजेस में स्कॉलरशिप स्कीम होती है, तो आईआईटी बॉम्बे एसजे सॉम में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे 20% ऑफ द स्टूडेंट बेनिफिट ऑफ द वेरियस स्कॉलरशिप, लाइक आपके मार्क्स के बेसिस पे हो सकती है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। एंड important thing is also SC/ST candidates are exempted from paying the tuition fees, ठीक है। तो ये भी अच्छा एक बेनिफिट है यहाँ पे, राइट। तो स्कॉलरशिप का फैसिलिटी यस है यहाँ आपका एसजेएसओ में। अब सेकंड क्वेश्चन होता है कि मैम क्या लोन वगैरह बहुत इजीली मिल जाता है? देखो बच्चे, पहली चीज तो ये होता है कि इफ यू आर अप्लाइंग, इफ यू आर कन्वर्टेड अ कॉल ऑफ अ वेरी रिनाउंड इंस्टीट्यूट लाइक आईआईटी बॉम्बे, तो लोन के लिए कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है, बैंक आपको सामने से लोन दे देगा, ठीक है। तो और इस कॉलेज में भी वैसे भी इनके कैंपस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक उन्होंने दिया हुआ है, आप उनकी वेबसाइट पे जाके पूरा प्रोसीजर चेक कर सकते हो। तो यस डेफिनेटली आपको बहुत इजीली लोन मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Now next question is total how many total seats for the 22-24 batch? तो total seats are the 152, ठीक है। ये इनके ऑफिशियल डेटा में है, तो टोटल 152 सीट्स है, उसमें जनरल 62, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी एंड पीडी कैंडिडेट्स। तो टोटल जो बैच बनेगा वो आपका 152 स्टूडेंट्स का बैच होगा आपके इस वाले ईयर के लिए, ओके। अब फी स्ट्रक्चर बच्चे अगर मैं बोलूं तो अप्रोक्सीमेट 9 to 10 लाख के आसपास इसका फी स्ट्रक्चर रहता है पूरा 2 ईयर एमबीए प्रोग्राम के लिए। बट फिर भी मैंने ये पूरा लिंक दिया हुआ है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपलोड करूंगी, आप लोग पूरा ब्रेकआउट देख सकते हो कि ट्यूशन फीस इज अराउंड 2,40,000 पर सेमेस्टर। तो अप्रोक्सीमेट 8.5 लाख के आसपास फी हो जाएगा आपका, और उसके बाद में कुछ डिपॉजिट्स वगैरह है, तो अप्रोक्सीमेट इट विल बी अराउंड 9 to 10 lakhs। बट फिर भी आप लोग ये पूरा पीडीएफ चेक कर लेना, राइट। तो जैसे मैंने आपसे बोला था कि लास्ट में आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो इन द नेक्स्ट वीडियो एक मेरी स्टूडेंट है, वो अभी आईआईटी बॉम्बे में स्टडी कर रही है, तो वो आने वाली हैं और हम लोग मतलब वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि कैसा मतलब उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा था, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम हर एंड व्हाट आर द कैंपस लाइफ, और कैंपस में मतलब आपको क्या क्या लर्निंग्स रहेगी, वो सब इंटरव्यू एक्सपीरियंस वो अपने शेयर करेंगी। एंड इम्पॉर्टेंट इज लाइफ एट आईआईटी बॉम्बे। सो स्टे ट्यून्ड, आई होप आपके माइंड में एक सेटअप बन चुका है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लाइफ एट आईआईटी बॉम्बे के साथ में। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।